One is the concept, okay, and then the other one is certain numeric limits or the procedure behind that theory subject. Okay, so when we're talking about, for example, I'll talk about my subject, which is company law. In that, there are certain limits. Turnover limits are there, paid up share capital limits are there. Those numbers are there, right? Then we have special resolution or ordinary resolution. There are certain procedures that have to be followed in different parts of different chapters, different sections, right? So these are things. These do not exactly have a deciding concept behind it, but we just have to remember these things, okay? So for this part of your theory subjects, what you need to do is first you read them and then you jot it down somewhere. We are going to separately be creating a notebook in which we have jotted down all these procedural aspects which we kind of need to remember. Now, note making serves two purposes. First of all, you're writing it down, so in a way you're kind of revising it also. There is more chances for you to retain it because your hand is involved, you're more focused, so definitely there is more chance of remembering these concepts. The second thing is, this is going to be very useful in revising. You don't have to read that huge fat book again. You can just see these notes, and based on that you can do your second revision, third revision, just before the examination. In that last one day also you can do your revision. Now for note making, I already have a specialty subjects, so I'm going to be revealing those steps. You can use these tips, and I said you have to understand the concept behind a chapter. Now how do you understand the concept behind a chapter? For most of the students, what they do is they take up the chapter, they start reading from the first paragraph onwards. Now that is not the correct way in my opinion. What you should exactly do is, when you take up a new chapter, just read the main headings of that entire chapter in one glance. Okay, so first page you read the main headings, next page you read the main headings, third page you read the main headings. That way you complete the whole chapter just by reading the main headings. When you do that, then basically in your mind a picture is going to be created. You will kind of have an idea as to what this chapter relates with. You will kind of have an idea as to what are you going to be doing in this chapter. You know how before a movie is released, there is a trailer which is released. That trailer basically gives you the concept behind that movie. Once you know that trailer, then you're more interested to watch that movie because then you're excited about what to look for. Right? This is exactly how theory chapters also have to be done. So you will notice that your speed of reading will automatically increase compared to initially. Initially, you might not know what you're looking at. You might not know what this chapter is about. You're just trying to complete it. You're just reading these paragraphs. It becomes monotonous. Versus now you already know what you're looking forward to. Now you already have some idea about this chapter. Okay, so it is kind of going to make the process easier for you, and you will also become faster in reading. The next tip is a little unconventional tip. I used to use it. It is basically if you're feeling bored a single day, I personally build a target as to what you're trying to achieve. So let's say the target is 50 pages per day. Okay, now sometimes it gets boring. Sometimes we don't feel like studying. Sometimes we just don't like the book. We don't like the concept. It happens with every one of us. So around that time, what I used to do is I used to pick up any topic from that chapter. What I mean is that instead of doing the entire chapter in sequence, I would take up any topic before the other one. I sometimes might jump to the 5th page and do that 5th page first. Sometimes I might take up the 10th page first. I would do that page first. So whatever topic interested me, I would go in that direction. So the whole concept behind it was that instead of wasting the entire time, let's do something, something is always better than nothing. So that way, out of the entire chapter, sometimes I would do this concept, sometimes I would do this concept, that concept, this concept. Overall, after 1 hour, 2 hour, 5 hours, I would complete that entire chapter. I would complete my entire goal. Similarly, one more trick that I used to follow is I used to basically trick my mind. Okay, if I did not like theory, then I would just give my brain a target to complete. That means I told my brain that, listen, you just need to do 7 pages. You finish up 7 pages, you take a break. Okay, so my motivation was that break. So that way, very quickly, I would try to complete those 7 pages and then I would rush to take a break. And then after the break, again, I would give myself those targets. So every time I was kind of chasing that break, but while chasing that break, I tried to finish as much as possible. See, the first round of reading is always going to be very, very difficult because these are new concepts. Plus, you might not be in the momentum of studying. So you will have to build that habit, and building a habit is kind of a change, and change is always hard. Change is difficult. It's painful. Okay, so in order to sail through that change, you should have some sort of motivation. So for me, break became the motivation. So this is also something which you can try out. Another thing that I would do to make the theory subjects interesting is that I would read them aloud and I would try to explain those concepts to myself. It's basically like talking to your own self. So you read the concepts and then you explain those topics to your own self. So basically interesting is that I would read them aloud and I would try to explain those concepts to myself. It's basically like talking to your own self. So you read the concepts and then you explain those topics to your own self. So basically that gives you clarity of the concept. You will probably come up with new ideas while you're explaining these topics to yourself. You can also do one more thing. You can try to explain these topics to someone else. So it could be a friend of yours who's also in the same curriculum, right? So you two may decide that that other friend of yours can do a few topics and you can prepare a few topics and then you can make some discussions with each other. The last tip in this video is mix theory subjects with practical subjects. So maybe for an hour you can try to complete theory subjects and then maybe you can enjoy with the practical subjects. You can do a couple of questions of the practical subjects, right? Same way, between practical subject also you can take up a little bit of break and do maybe 3 pages, 2 pages, 5 pages of theory subjects. So instead of taking that burden of doing that entire theory chapter or that entire theory book, if in between also you get some time, just finish up 1 paragraph, just finish up 1 page, just finish up 5 pages, right? Even little bit of time here and there would probably mean that you have completed 20 pages in a day or 50 pages in a day, right? So maybe that is something also which can help you in creating interest for theory subjects. Now this video is about how to create interest in theory. ठीक है, आगे आने वाले पूरे करियर के लिए, मतलब मैं आपको आजीवन की बात कर रहा हूँ, मतलब जिस टाइम तक वो जब आप आगे चलोगे तब तो है, लेकिन इसके अलावा जब आप अपने जाएंगे प्रोफेशनल, इस बात को ध्यान रखिएगा, होना है तो दोस्त लाना है तो होती है कि जब वो
जैसे ये केस लॉ है, केस लॉ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खादिर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन एंड अदर्स. इन दिस केस द क्वेश्चन व्हिच अरोज बिफोर द कोर्ट वाज वेदर अ कंपनी इज एंटाइटल्ड टू सू एज एन इंडिजेंट मतलब पुअर पर्सन अंडर द सीपीसी मतलब सिविल प्रोसीजर कोड 1908. द अफोर्सेड order permit person to file the suit as a pauper मतलब poor person if they are unable to bear the cost of litigation. कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फटाफट बताओ क्या आपका तरीका पढ़ने का ऐसा नहीं है क्या. और ध्यान से सुनिएगा और मैं आपको बता चुका हूं दिस विल हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ. सर जब आपका पढ़ने का तरीका ऐसा ही है तो आपका जो दिमाग है ना वो दिमाग लाइन को पढ़ने में यूज हो रहा है. मतलब वो दिमाग चीजों को समझ नहीं पा रहा. लाइन पढ़ लिया पूरा इंग्लिश जो लिखा हुआ था ना वो इंग्लिश पूरा का पूरा पढ़िए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. लेकिन जो वहां पे आपको समझ में आना चाहिए था वो समझ में नहीं आया. और जब तक वो समझ में नहीं आया तो मुझे बताइए आप उस चीज को आंसर कैसे करेंगे, आप उस चीज के बारे में बताएंगे कैसे. अभी जो मैंने यहां तक की लाइन पढ़ी, कहां तक पढ़ा बेटा मैंने ना मेरे हिसाब से यहां तक पढ़ा. आपको एक वर्ड जो है वो समझ में नहीं आया होगा या फिर आपको 3-4 वर्ड समझ में आ गए होंगे या ऊपर से आपको समझ में आ गया होगा लेकिन थॉरोली समझ में नहीं आया होगा. बेटा गांठ बांध लो एक बात की कि आज के बाद अगर आपको सब्जेक्ट के अंदर लिखी हुई कोई भी बात पढ़नी है तो आपको ठीक वैसे पढ़नी है जैसे अब मैं यानी कि आपके प्रवीण सर यहां पे पढ़ने जा रहे हैं. सर उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि जो कंटेंट आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उसको एक ही बार पढ़ना पड़ेगा और एक ही बार पढ़ के वो चीज आपके दिमाग में फीड हो जाएगी, आपको वो समझ में आ जाएगी. और एक बात मैं आपको बताऊं, यूजुअली ऐसा होता है कि बच्चे का टाइम जो है ना वो एग्जाम में बहुत वेस्ट होता है. काफी बार बच्चा ऐसा बोलता है कि सर मेरा ना पेपर छूट गया. क्यों छूट गया? क्योंकि आप इसी तरीके से पढ़ते हैं जिसकी वजह से एक क्वेश्चन को एक बार नहीं बल्कि 2 बार, कई बार तो 3 बार और कई बार वेस्ट होता है. काफी बार बच्चा ऐसा बोलता है कि सर एक बार नहीं बल्कि 2 बार, कई बार तो 3 रखते कर रहे हो सर आप हैं क्या कितना सारा भाव. चलो ठीक है सॉरी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा. मैं एक स्टूडेंट हूँ, एज अ स्टूडेंट मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ. सो बोले इन दिस केस द क्वेश्चन व्हिच अरोज बिफोर द कोर्ट. अच्छा कोर्ट के सामने एक सवाल आया, क्या वेदर मतलब क्या अ कंपनी इज एंटाइटल्ड टू सू मतलब क्या होता है भाई साहब, केस करना. ठीक है सर आपने तो बताया सूट करने का मतलब केस होता है. सू का जो पास्ट टेंस वगैरह है वो होता है सू एज एन इंडिजेंट, उसका दूसरा मतलब होता है पुअर पर्सन अंडर द सीपीसी 1908 मतलब सीपीसी का फुल फॉर्म क्या है, सिविल प्रोसीजर कोड. इस तरह से हमेशा बोलते हुए पढ़ो और पढ़ते हुए लाइनिंग करते रहो पेंसिल से बुक में. लेक्चर किया होगा मैंने आपको क्लियर एज अ स्टूडेंट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. ध्यान दीजिएगा. द क्वेश्चन के सामने एक सवाल आया, अ कंपनी इज सू एज ये लाइन ऑर्डर परमिट्स पर्सन टू फाइल सूट एज अ पॉपर. पॉपर का मतलब भी क्या होता है, पुअर पर्सन. कैसे पता? सब बोले यहाँ इंडिजेंट लिखा हुआ है और पहले ही बता दिया था कि इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर पर्सन. इफ दे आर अनेबल टू बियर द कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन. लिटिगेशन का मतलब क्या होता है वापस से केस. सब बोले अगर केस चल रहा होगा तो उसका जो कॉस्ट है अगर आप उसको बियर नहीं कर सकते हैं तो बोले जो अफोर्सेड ऑर्डर है यानी कि ये केस में जो ऑर्डर पास किया गया था उसमें ये कहा गया था क्या कि आप यहाँ पे एज अ पुअर पर्सन केस को कर सकते हैं. नाउ द एपिलेंट अपील करने वाला, सर जिसने पुराने वाले कोर्ट के अगेंस्ट में ऊपर वाले कोर्ट पे जाके अपील किया होगा उसे कहते हैं एपिलेंट. The appellant in this case had objected to the contention of the company which has sought permission to sue as an indigent person. क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, मैं जितना एक लाइन बोल रहा हूं उसको अपने ही अंदर हिंदी में कन्वर्ट कर रहा हूं. ध्यान से सुनिएगा भाई साहब. अगर आप में से कोई अंग्रेजी का बनने की कोशिश कर रहा हो तो अलग बात है, ठीक है. बट एक बात तो एकदम कंफर्म है, ये हम सब लोग जानते हैं कि हमारी जो मदर टंग है वो कौन सी है, हिंदी. कौन सी है, हिंदी है, राइट. और अगर हमारी लैंग्वेज हिंदी है तो हमें बताइए कौन सी भाषा में चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, सही हिंदी आएगी. हाँ कुछ लोग होंगे जिनको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है उनकी बात अलग है, लेकिन जो ऐसे लोग हों जो कि इंग्लिश को उतने अच्छे से नहीं समझते हैं जितना कि हिंदी को समझते हैं उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है. एक लाइन में भी एक सेंटेंस को मैं ब्रेक कर रहा हूं अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो, ठीक है. ब्रेक करके उसके मीनिंग को निकाल रहा हूं, उसके मीनिंग को समझ रहा हूं और फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं. अगर ऐसा करोगे एक बार में पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो आपको समझ में आ जाएगा. दोबारा तिबारा चौबारा 5 बारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस पॉइंट चलिए भाई साहब, ठीक है. द एपिलेंट लिक लिमिटेड कंपनी नॉट अ पर्सन विद इन द परव्यू ऑफ कोड. कोड का मतलब यहाँ 1908 सिविल प्रोसीजर. पर्सन रेफर टू ओनली अ मतलब ऐसा बोला गया. अगर सीपीसी के हिसाब से बात करेंगे तो सीपीसी में जो बेनिफिट वो बोले कंपनी को नहीं दी, वो सिर्फ नेचुरल पर्सन को दिया गया. सीपीसी के एसन के बारे में बात करी गई है नहीं होती. एंड नॉट द सुप्रीम. But also को read बहुत करना होता है. So you should either love reading, which is a huge advantage, but at least you should write. You should like reading. You should not really. That's one. You should move on to novellas. Now novellas are greater than short stories, but lesser than novels. So novellas, so to wake up and read.
When you go to sleep at night, you probably keep your phone aside. So don't do that. Keep your book with you. And when you wake up, the first thing you do is pick up that book from your side and start reading. And that's probably the best start to a morning anybody could have. The third tip will be to go to sleep. And that will help you listen to the story, right? Pick a book at night, obviously after reading it. You can wake up and continue reading that book again. And that is something that I continuously keep doing. I love sleeping with my books. I just love it. And have that book again and I continue it. It's probably the best feeling in the world. So make sure you don't miss that feeling. The fourth tip might sound a bit thriller novel genre. I have told you guys this before. When I read any book other than the psychotic thriller genre, it takes genre. I love short stories equally. But if I pick up something like scientific novels or thriller novels, it takes me a lot more time. And that's something that I Read what interests you. Read those all. Enhance your reading. Roman Saini. love it. Read books that are only from your favorite genre. Hopefully you know what's your favorite genre, but अली बहुत काम आता है। वॉरेन बफेट प्रोफेशनली रीडिंग के कारण ही आगे बढ़े हुए हैं। ये लोग मंथ में रीड कर लेते हैं। इन्हांस करने के लिए ये अपना मैक्सिमम टाइम रीडिंग को डिवोट करते हैं। प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस को स्किल्स इंप्रूव करने पड़ेंगे। मैं हिंदी मीडियम से था, मुझे पता चल चुका था कि इंग्लिश मुझे इंप्रूव करनी ही पड़ेगी। खूब वोकेबलरी के रट्टे मारे। मैं 98 में सीए बना, उसके बाद भी मेरी पॉकेट में वोकेबलरी की स्लिप्स हुआ करती थी। डेल कार्नेगी की जो बुक मिलती थी उसके नोट्स बना बना के इंप्लीमेंट करता था। आजकल तो नेट पे बहुत कोर्स मिल जाएंगे, करने पड़ेंगे। मैं हिंदी मीडियम से था, मुझे पता चल चुका था कि इंग्लिश मुझे इंप्रूव करनी ही पड़ेगी। खूब वोकेबलरी के रट्टे मारे। मैं 98 में सीए बना, उसके बाद भी मेरी पॉकेट में वोकेबलरी की स्लिप्स हुआ करती थी। डेल कार्नेगी की जो बुक मिलती थी उसके नोट्स बना बना के इंप्लीमेंट करता था। आजकल तो नेट पे बहुत कोर्स मिल जाएंगे आपको। जहां तक पढ़ाने की बात है, टाइम ही नहीं मिलता हमें तो भैया ये जो वीकेंड्स पे आप सारा दिन टीवी देखते हो, सीरीज देखते हो, इनसे कुछ नहीं होने वाला आपका। जो दोस्तों पे सब पे टाइम वेस्ट करते हो, अपने पर टाइम लगाना ही पड़ेगा। आपको स्किल्स मिलेंगे, रिस्क लेने में टीवी लाना पड़ेगा। बहुत लोगों पे टाइम वेस्ट मत करो। मोबाइल टीवी कुछ नहीं मिलेगा इससे, सीरीज से। आप अपने स्किल्स डेवलप करोगे, अपनी हॉबीज डेवलप करोगे तो लाइफ में बहुत मजा आने वाला है, जो मैं एंजॉय करता हूँ। थैंक्स बोला। दोस्तों, आप कितने भी मोटिवेशन बुक्स पढ़ लीजिए, कितनी भी धार्मिक बातें कर लीजिए, आपका रियल लेवल ऑफ हैप्पीनेस इस बात से डिसाइड होता है कि आप कितने थैंकफुल हैं। ऑनेस्टली, ऊपर से नहीं कि जब तक कोई मदद कर रहा है, जैसी कि तेरी ऐसी बातें सिखा रहा हूं। जिसना बहुत दुखी है, आपकी क्या मन से थैंक्स कीजिए, बहुत अच्छी बात। पंकज की है तो वो चेन आगे पास करने के लिए टेस्ट दे कर देखना। आप एक चीज क्या है एग्जाम पास करने के लिए? टेस्ट दे कर देखना। आप अप्लाई करके देख लीजिए, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, आप पास कर जाएंगे। आप अगर आप क्लाइंट आपसे क्या नॉलेज मांगता है, होता है जो घर से प्रैक्टिस करके नहीं जाते। आपको सिर्फ बता रहा हूं सर, आप टेस्ट देके जाओ, रिटर्न प्रैक्टिस करके जाओ, मतलब नहीं आपका 100 का पूरा हो, क्यों रैंक आ रहे हैं फिर? मतलब आधे बच्चे आपको देखेंगे 60 हो, भाई जब इनको जाएगा तो 60 का ही होगा ना। 100 का हो गया, उन्होंने कौन सी जड़ी बूटी खाई है? उन्होंने तो वही पेपर दिया ना। क्यों? क्योंकि भाई साहब घर से 5-5 तो रिवीजन करके गए हैं। बोले जी मैं तो क्लास खत्म करके सिर्फ, तो भैया फिर ठीक है, कैलिबर से आगे बढ़ते हो। और अगर आपके अंदर आग है तो आप कुछ भी झेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैंने अपनी टीचिंग लाइन के अंदर भी, के अंदर आया, मैंने पहले भी कहा 3 बच्चों से अटेम्प्ट है, उसको लिख लो दीवार पे कि भैया लास्ट अटेम्प्ट है मेरा। क्योंकि जिस दिन आप रूम में एंट्री करोगे वही दिखेगा बार बार, और फिर ना वो मोटिवेशन देगा। बच्चे कहते हैं मोटिवेशन नहीं आता, पढ़ने के लिए बैठते हैं हमारे भाई, कैसे मोटिवेशन नहीं आता? आप लिखो ना दीवार पे कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। आप लिखो ना कि मुझे पेरेंट्स के लिए करना है, आप लिखो ना मुझे इसके लिए करना है। जैसे अंदर घुसोगे दिमाग खराब हो जाएगा, मुझे पढ़ने के लिए बैठना है भाई। क्योंकि मेरे हालत तो इधर, जब मैं लेटता था ना रात को, तो मेरे को, क्योंकि मेरा रूम स्टडी रूम अगर मैं आपको दिखा दूंगा ना सर, सारे चार्ट चिपके हुए हैं, सारे चार्ट। ये डायग्राम बनाने की आदत मुझे कहां से लगी? ये वहीं सीए से लगी। क्योंकि अचिंगली एजेंसी अब तो रिटायरमेंट ले लिया। इंस्टा पे जाके देखना, बहुत कुछ सीखा है कि 170 कंट्री वर्ल्ड में घूमनी, एंजॉय कर रहे हैं ना। और 40 साल मेहनत किया, एंजॉय करें, यही होता है सर। एज, मेहनत करने की एक एज होती है। आप नहीं कर सकते पूरी जिंदगी मेहनत, पूरी जिंदगी गधा नहीं बन सकते ना। आपको लिमिट फिक्स करनी पड़ेगी कि भाई मुझे कब सीए बनना है, ये मेरी एज की लिमिट है, अब सीए बनना है। उसके बाद मुझे यहां तक अच्छे से पैसा कमाना है, फिर मुझे एंजॉय करना और फैमिली को भी करवाना है। ये पूरी जिंदगी गधे की तरह दौड़ते जा। अरे भाई जिंदगी का भरोसा तो आजकल 2 मिनट का नहीं है। पैसा कमा के एंजॉय कब करोगे सर? जिंदगी पागल थोड़ा बनानी है। चीजें हैं, चलो वापिस आओ सर। नहीं, मोटिवेशन नहीं, एक एम लेके चलो बस। मैं तो ये कहता हूं सर, एक एम जिस दिन आपका लाइफ के अंदर बन गया, आप उस दिन पास हो जाओगे। क्या सेक्रीफाइस किया, मैं सीए गालियां निकालते हैं, बट आज प्रेस वीडियो देखते हैं, वो दिखाते हैं गोल्डन सिल्वर बटन मुझे मिला, दिखाते हैं कि ये हम लड़का, ये फील होता है ना। बट अगर मैं वही उस टाइम ऐश करता, चल यार महफिल जमाते हैं, चल यार खेलने चलते हैं, चल यार ये करते हैं, तो आज में भी हमें ना होता। मैं कई बार देखता हूं कि लोग 25-25 साल के, 26-26 साल के सीए कर रहे हैं अभी, फिर ये प्राउड फील करता हूं यार मैं 28-29 साल का हूं तो यहां पहुंचूंगा भगवान की दया से। मैंने सही टाइम पे सही डायरेक्शन के अंदर मेहनत करना। अगर वो कर गए, पूरी जिंदगी आपके पास है, बहुत आपकी लाइफ आगे है और दुनिया आपके पीछे घूमेगी। आप जिनके पीछे अभी भागने की कोशिश कर रहे हो, वो आपके पीछे भागेंगे अगर आप सही टाइम पे काम करें। फिर आप उनके पकड़ में नहीं आओगे। बस वो है कि आपने अच्छा काम किया। तो यही होती है बस थोड़ी सी चीज। अगर किसी को देना है, रिजल्ट से दो, बोल के नहीं। मतलब अगर कोई कहता ना कि नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं, कर रहे हैं अभी, टाइम लगेगा। मेरा रिजल्ट, आप मत बोलो, रिजल्ट से जवाब दो। हमेशा हमेशा कर्म करते रहो अच्छे तरीके से बस। चलो कहां थे यार, ये सब सही हो गया मेरा। चल, बहुत खराब थी, रैंक आया उनके टॉप।
पता उनको मैं क्या सिखाता था? प्रेजेंटेशन। अब हम जब बहुत ध्यान से करना, अंडरलाइन, खुला खुला वर्क, इट डज मेक अ चेंज आता है। सो मुझे लगता है कि एग्जाम से पहले कुछ याद नहीं आएगा हमें यार, मेरी कंसंट्रेशन नहीं बन रही, बहुत टेंशन हो रही है। मेरी एक टिप यूज करना, लिखना शुरू कर दो, बस देख देख के लिखना शुरू कर दो। रिकॉल मत करो कि इसको रिकॉल करना, उसमें क्या था ना, देख देख के पढ़ते रहो। और जब कंसंट्रेशन ना बने तो देख देख के लिखना शुरू कर दो। थोड़ी देर में कंसंट्रेशन अपना बन जाएगी। ना बने लिखते, देख देख के कॉपी करते जाओ, देख देख के कॉपी करते जाओ, कंसंट्रेशन बनेगी और आपको सब याद आता चला जाएगा। हम अपने आप को टेस्ट करना शुरू कर देते हैं बिफोर एग्जाम, बिल्कुल नहीं करना। डू नॉट रिकॉल, जस्ट रिपीट, जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग। जब कंसंट्रेशन ना बने तो उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ उसको देख देख के लिखना शुरू कर दो। आप किसी चीज को आसान सा क्वेश्चन उठाओ और उसको कॉपी करते चले जाओ। मन ठीक हो जाएगा जब, तो कंसंट्रेशन अपने आप बन जाएगी। हम चाहते हैं स्टार्टिंग से कंसंट्रेशन बना ले, ऐसा नहीं होता, राइट? तो धीरे 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 करके लिखते जाओ। लिखने से माइंड अपने आप चेंज होता जाएगा, राइट? एंड द लास्ट, ये क्या, जब आप काम नहीं कर रहे तब किक करो अपने आप को। जब काम करने का मन नहीं कर रहा, टैन किक योरसेल्फ कि अबे मर जाएगा अगर पास नहीं हुआ तो, अबे क्या मुंह दिखाने लायक बचेगा, फिर उठ जाओ, बैठ जाओ। व्हेन यू आर वर्किंग, तब उस टाइम पर सिर्फ क्वेश्चन पर माइंड का यार रिजल्ट क्या आएगा, भाई नहीं, क्वेश्चन करना मुझे बैठ के लिखना शुरू कर दो। वही जो टेक्निक पीछे बताई थी मैंने आपको। सो फोकस ऑन द प्रोसेस। आउटकम पर जितना कम हो सके लाइफ में ध्यान हटाते चले जाओ। प्रोसेस पे ध्यान लगाओ कि मैं डेली क्या काम कर रहा हूं। बस आज मैंने काम अच्छा किया, दैट इज इट। अब जो होगा देखी जाएगी। एंड फॉरगेट द रेस्ट। मेरे को लिख के, सर मैडम जो भी पढ़ा रहे हैं मेरे को लिख के एकदम प्रैक्टिस करना है। तो ये प्रैक्टिस अगर थ्योरी में भी रहेगी ना, सम्स इतना घसते हैं हम लोग, क्वेश्चन पूछा जाता है, वी डोंट राइट दैट, वी जस्ट डू सम्स। पर चलो सम्स के बहाने लिखने का एक हो गया। यहाँ तो थ्योरी में तो वो भी नहीं हो पाएगा, नहीं तो हम लोग, ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस करो। मुझसे हमेशा स्टूडेंट्स लोग क्या होता है, कोई भी चीज पढ़ा दो या कभी कोई चीज यूट्यूब में पढ़ा के डाल दो, लिखा दो, तो कभी दे दो कॉपी नोट्स, कभी लिए बना, अरे जो भी मुझे कॉपी नोट्स में देना मैं लिखा हूं, तो कॉपी प्रैक्टिस। बिकॉज कॉपी नोट्स एक तो राइटिंग प्रैक्टिस कराता है तुमको एग्जाम के लिए, दूसरा एग्जाम जब होता है तो क्या है कि कॉपी नोट्स तड़ातर रिवाइज होते हैं, रिवीजन पर्पस के लिए ना एकदम, पता क्या, वो संजीवनी के बराबर है वो रिवीजन पर्पस के लिए कॉपी नोट्स। तो तुम्हारे एक हाथ खुलता है। इस चीज में ना शॉर्टकट मत मारो, इस चीज में शॉर्टकट मत मारो, वह बड़ा नुकसान कर बैठोगे, ठीक है। नोट्स एक तो राइटिंग प्रैक्टिस कराता है तुमको एग्जाम के लिए, दूसरा एग्जाम जब होता है तो क्या है कि कॉपी नोट्स तड़ातर रिवाइज होते हैं, रिवीजन पर्पस के लिए ना एकदम, पता क्या, वो संजीवनी के बराबर है वो रिवीजन पर्पस के लिए कॉपी नोट्स। तो तुम्हारे एक हाथ खुलता है। इस चीज में ना शॉर्टकट मत मारो। और मैं क्या करता था एज स्टूडेंट, वो आपको बता रहा हूँ, हम लोग स्ट्राइक कुछ बना लिया करते थे। रजिस्टमेंट में जो जज साहब ने कहा था वो सब कुछ याद रहता है। केस का नाम क्या था अब वो याद नहीं आ रहा, तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और अपनी मर्जी से सिर्फ पेपर निकालते थे इस साइज के, और क्या करते थे, एक तरफ मैं अपने फ्रेंड सर्कल की बात बता रहा हूँ, एक तरफ केस का नाम लिखा, दूसरी तरफ उसकी जजमेंट लिखी, और इस तरीके से छोटे छोटे लीफ बना लिए जजमेंट्स, और फिर बैठकर शाम को पत्ती की तरह खेलना शुरू कर दिया। पिक आउट अ लीफ, एक लीफ खींचना है और आमने सामने पे लीफ लेकर मेरी तरफ से तो लीफ खींच और साथ में एक छोटा सा पॉलिथीन रख लिया, उसमें डालते जा रहे हैं। अब लीफ में अगर आपकी आंखों के सामने जजमेंट आ गई तो केस का नाम उसकी बैक साइड पे है। अब केस का नाम उसकी बैक साइड पे, लेकिन वो पढ़ना नहीं है, आपको गेस करना है, बताना है कि वो क्या है। और साथ में एक रजिस्टर रखकर बैठे हैं जिसमें स्कोर दे रहे हैं अपने आप को। सही आंसर दिया तो 1, गलत आंसर दिया तो -0.5। और शाम को बैठे हैं 5 से 6 और लीफ। अब उसमें क्या हो रहा है कि जजमेंट आई हुई है 4-5 लाइन की, सही आंसर बताया तो 1 मार्क, गलत आंसर बताया तो -0.5। वो मार्किंग चल रही है, पलट के देख लो, वेरीफाई कर लो, पॉलिथीन में डाल दो, 50-50 रोटेट कर रहे हैं। विल बी वेरी हैप्पी। जो हार गया वो क्या करेगा, वो जूस शॉप पे चलकर जूस पिलाएगा, ऑरेंज जूस जो भी पीना, मिक्स्ड फ्रूट जूस व्हाटएवर। तो उस दिन का बर्डन उसके ऊपर है। और जो 5 दिन लाइन में हार जाएगा तो 5 दिन तो रोएगा कि भाई 5 दिन से जूस मैं ही पिलाई जा रहा हूँ। तो किसी दिन जूस पिएंगे, किसी दिन बाहर। अगर वो हम शाम को नॉर्मली क्या होता था, टैंक रोड पे NIRC लाइब्रेरी में पढ़ते थे, तो साथ में टैंक रोड की मार्केट थी, तो वहाँ पर कूलर वाला दूध मिलता था, तो कूलर वाले ग्लास में और ऊपर से वो जलेबी डालकर एंड ऑल दैट। तो शाम को जाएंगे, किसी दिन जूस पिएंगे, किसी दिन कूलर वाला दूध पिएंगे, या समोसा पार्टी होगी, या कचौड़ी पार्टी होगी, जलेबी पार्टी होगी, व्हाटएवर। लेकिन जो हारेगा वो पार्टी देगा, और जो 5 दिन तक लुटेगा ना, वो 6 दिन तक जाकर पढ़ाई जरूर करेगा। तो जो 5 दिन से लुट रहा है, और अगर 3 या 4 फ्रेंड्स मिलकर खेलेंगे और एक अकेले को खिलाना पड़ रहा है 4-4 को, तो बड़ा भारी पड़ेगा फिर उस केस में। तो फिर अपने आप पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो हम लोगों की हैबिट थी इस टाइप के, इस साइज के लीफ बनाने की। आजकल मैं फिर से प्लान कर रहा हूं कि मैं ऐसे लीफ बनाकर या तो आप लोगों में बैठवा दूं। उनको आप क्या करोगे, उनको ना आप अपना पोस्टर बनाओ एक अपने हाथ से, और उस पोस्टर को चेंज करते रहो। मेरे रूम में सबसे जो मेन प्लेस है, मैं वहां पे ना ऐसे पोस्टर लगाता हूं, कुछ क्या लगाना, विजुअलाइजर दिख रहा है कुछ यहाँ पे। आई थिंक यू कैन रीड दिस वन परहैप्स। आपको फ्यूचर में जो भी चीजें चाहिए ना, इस बुक में भी लिखा हुआ है, आपको उसका एक चार्ट बनाना है। एक छोटा सा पोस्टर लो, पेज लो, पेस्ट इट देयर, जिसे आप बार बार देख सकें। अपने हाथ से लिखना है और उसको रिपीटेडली देखना है। मैं दिन में इतनी बार देख लेता हूं उसे मैं, दैट आई डू नॉट लूज साइट ऑफ माई टारगेट। माई टारगेट इज ऑन 50th बर्थडे, 16 मई 2050 बर्थडे पे एवरेस्ट में मनानी है भाई, बिल्कुल उस दिन ही मनानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे करके जाऊं, चाहे मैं, ये मेरी जिद है। उसके लिए मेरी नजर वहां से हटती नहीं कि मेरे को फिट रहना पड़ेगा अमेजिंगली, ओनली देन इट इज पॉसिबल, बहुत बुरे तरीके से। आपको क्या करना है, फ्यूचर में जो आपके जहन में है, whatever is going inside your mind, write on a piece of paper, A4 sheet लो, and paste it at the place where you can watch it most of the times in a day. आप देखो कितना मजा आएगा, you'll find it कि हाँ यार गोल कैसे पूरे होते हैं। गोल्स को रिपीट करना पड़ता है माइंड में बार बार। The final point is write goal every day. इसको चेंज करते रहो, keep on changing it. 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, keep on changing it. क्या चेंज करना है उसको वहां पर मुझे लगातार।
लेकिन with the last sentence friends तो हमेशा से सी यार सिर्फ एकेडमिक क्या कर रहे हैं हम लोग, अपने में भी तो डेवलपमेंट करना चाहिए। मुझे ये चीजें स्ट्राइक की कि लेट्स टेक अ रेजोल्यूशन नाउ, आई विल ट्राई टू रीड वन बुक इन 1 वीक। और ये काम मैंने पूरा 1 साल तक के कंटिन्यू किया, बिल गेट्स से इंस्पायर होकर के, क्योंकि वो भी इसी तरह करते थे। तो मुझे लगा कि व्हाई नॉट, बुक पढ़ने में कोई बुराई तो है नहीं, इनफैक्ट कुछ अच्छा ही मिलेगा, जो भी होगा कुछ अच्छा ही होगा। तो वहां से मैं इंस्पिरेशन लेकर के मैंने भी 1 वीक में 1 बुक पढ़ना शुरू किया। लिखना या किसी को, ये सब चीजें अलग हैं, और बुक पढ़ना इज मैन ऑल टुगेदर अनदर लेवल। ये कुछ और ही है, वो एक्सपीरियंस ही कुछ और है। जब आप बुक में लिखी चीजों को जब आप सोचते हो, इमेजिन करते हो, आपकी सोच का दायरा बढ़ता है, आपकी इमेजिनेशन का दायरा बढ़ता है। यूट्यूब में अगर आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसको भी देखिए। लेकिन बुक्स के बारे में फिलहाल अगर मैं बात करूं, तो बुक्स पढ़ने का जो लेवल है, जो उसमें जो हमारा मेंटल लेवल होता है, जो ग्रो करता है, वो अलग ही लेवल पे होता है। बुक्स जब मैं पढ़ता था तो मेरे को अपने अंदर ही एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस फील होता था इन कंपैरिजन टू अदर पीपल। मुझे अंदर से ही फीलिंग आती थी, अपने लिए रिस्पेक्ट आती थी, खुद के लिए रिस्पेक्ट, कि यार इतना अच्छा कर रहा है, इतने अच्छे थॉट्स तेरे दिमाग में जा रहे हैं, इतना मतलब बेहतरीन तरीके से तू सोच पा रहा है। तो ये जो थॉट्स थे ना, ये हमको फर्दर इंस्पायर करते हैं कुछ अच्छा करने में, और यही काम तो मैं करता भी हूँ, सिविल ड्रीम्स के क्लियर करता हूँ। तो वो कर मैं अपना होल कोर्स बुक एक कोर्स बुक करके 1 वीक में कंप्लीट कर सकता हूँ। से 4 टाइम एनी हाउ करना है। बुक रीडिंग हैबिट के अनुसार होल कोर्स बुक 1 कोर्स बुक करके 1 वीक में कंप्लीट। किताबों का महत्व बहुत ज्यादा है हमारी लाइफ में। आजकल खास करके जब हमारे हाथों में मोबाइल जैसे और आईपैड जैसे या लैपटॉप जैसे डिवाइसेस होते हैं, जहाँ पे हम लोग ई बुक्स डाउनलोड करके या फिर समरी पढ़ लेते हैं, यूट्यूब में वीडियोस देख लेते हैं कि इस बुक में क्या है, इस बुक में क्या है, हमें लगता है कि हमें हर चीज पता चल रही है। यार किसी ने एक किताब लिखी है, इतना ज्यादा रिसर्च करके, छोटी जो मुझे लगता था 50-60 पन्ने की, एक वीक में इजीली खत्म हो जाएगी। पहले बहुत ही मैनेजेबल टारगेट्स मैंने सेट किए। मेरे को लगता था कि यार इतनी मोटी एकेडमिकली अलग से सेल्फ हेल्प बुक कहाँ से, फिर 10 मिनट यहाँ से, 15 मिनट कभी बस में जो था ना मेरे, कि यार क्या आप दूसरों को अप्रिशिएट करना सीखेंगे, आप ये भी समझेंगे कि जो बंदा किसी चीज में रिसर्च कर चुका रहता है वो सोचता कैसे है। से ना आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी, आप दूसरों को अप्रिशिएट करना सीखेंगे, आप ये भी समझेंगे कि जो बंदा किसी चीज में रिसर्च कर चुका रहता है वो सोचता कैसे है। What's the importance of reading? You know, reading is very, very underrated. Now, I'll of course promote reading because I'm a writer. So it's not just because I'm a writer and I write books, I make movies also. So it's not like I don't do other things. But books are special and people should always read books. And I'll tell you why. 2 main reasons. One is books are the only thing that builds concentration. There is nothing else which... Books are special and people should always read books. And I'll tell you why. 2 main reasons. One is books are the only thing that builds concentration. There is nothing else which you can do that will build concentration. You are reading a book, but it's allowing you to learn, to focus and to concentrate, which you know is very important in life when you're doing any work, learning anything in school, in college, wherever. So you must be reading books for focus and concentration. The second thing, very, very important, books are the only thing that create creativity and imagination. When you watch a movie, when you watch a TV serial, you're seeing everything. You're seeing a girl in a red sari, you know, and they've shown you that actor wearing a red sari. But if you read it in a book, your mind has to imagine a lady, your mind has to imagine a red sari wearing lady, and that triggers your creativity and imagination. So for creativity, imagination, focus, concentration, books are important. So, you know, of course, keep reading books. अब बच्चों, अब यहाँ पे ना मैंने एक वीडियो बनाई कि रीडिंग का मतलब क्या होता है। जब आपको कोई कंसेप्ट पढ़ना है तो आप रीड करते हैं, अच्छी बात है। रीडिंग के बिना कंसेप्ट समझ में नहीं आता, रीड करता है, बट रीडिंग करने के साथ साथ आपको क्या करना है, उस कंसेप्ट को रिकॉलिंग करना है। रिकॉलिंग मतलब मैंने फॉर एग्जांपल एक कंसेप्ट पढ़ा कि भाई डॉक्ट्रिन ऑफ लेस्पेंडेंस का मतलब क्या होता है। ओके लेस्पेंडेंस का मतलब होता है कि जब तक कोई केस चालू है तब तक आप दूसरे कोर्ट में नहीं प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, नया कुछ इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये रीडिंग मैंने कर ली। अब मुझे वो कंसेप्ट अपने दिमाग में रिकॉल करना है। ओके लेस ऑफ लेस्पेंडेंस ये था। उसके बाद मेरे ख्याल से 10-11 घंटे आपको पढ़ना है। आखिरी का जो 1 घंटा है, ये नेक्स्ट डे सुबह की जो मॉर्निंग है, जो आप 3 या 4 दिन 5 दिन दे रहे हो सब्जेक्ट को, नेक्स्ट वो होता है कि जब तक कोई केस चालू है तब तक आप दूसरे कोर्ट में नहीं प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, नया कुछ इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये रीडिंग मैंने कर ली। अब रीडिंग करने के बाद मुझे 1 मिनट के, अब मुझे वो कंसेप्ट अपने दिमाग में रिकॉल करना है। ओके लेस ऑफ लेस्पेंडेंस ये था। उसके बाद मेरे ख्याल से 10-11 घंटे आपको पढ़ना है। आखिरी का जो 1 घंटा है, ये नेक्स्ट डे सुबह की जो मॉर्निंग है, जो आप 3 या 4 दिन 5 दिन दे रहे हो सब्जेक्ट को, नेक्स्ट सुबह जब आप पढ़ना शुरू करते हो उसी सेम सब्जेक्ट को, तो आपको क्या करना है, लास्ट डे आपने जो भी पढ़ा है हर एक कंसेप्ट को आपको रिकॉल करना है कि मैंने ये पढ़ा। देखना नहीं है हाँ लेस्पेंडेंस मतलब ओके कोर्ट में मामला पेंडिंग था, कहीं और नहीं जाना है, या किस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं करना है। ओके फ्रॉडलेंट ट्रांसफर जो होता है वो क्रेडिटर को उल्लू बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, रीड कर रहा हूँ। रीड तो मैंने कल किया था, मैं जिसको क्या कर रहा हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ। जो चीज आप रिकॉल करते हैं वो कभी आप बोलते नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाई, आप वो देख सकते हैं। तो बच्चों ये 30 अप्रैल तक आपकी 3 रीडिंग हो जाएगी, प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके सॉल्व करके होंगे। ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। अब आपके पास बच जाता है मई का पूरा महीना। अब इस मई के पूरे महीने में क्या करना है, ओके तो मई के पूरे महीने में अगेन आपको पूरा टाइम किसके देना, 3 रीडिंग आपकी हो चुकी है, आपको रिकॉलिंग करना है। मतलब जो कंसेप्ट आपने पढ़े थे वो आपको रिपीट करने हैं। तो यहाँ पे आप एक दिन हर एक सब्जेक्ट को दे सकते हैं, 8 सब्जेक्ट दे सकते हैं। चलो 2 दिन का मैं यहाँ पे बोनस देता हूँ, मान लो 10th में आ गया, ठीक है। अब जो अगले 10 दिन आपको क्या करना है, नेक्स्ट 10 डेज आपको क्या करना है, 10th मई से 20th मई तक आपको क्या करना है, हर एक दिन हर एक सब्जेक्ट के आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करने हैं खुद से।
और डोंट वरी, अगर आपका एक तो आंसर नहीं आता तो डिमोटिवेट नहीं होने का, क्योंकि बच्चों एग्जाम में ना सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, आपको क्वेश्चन तो आता है पर आप उसका आंसर नहीं लिख पाते। तो बच्चों प्लीज ये 10 दिन आपको सिर्फ क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है, क्वेश्चन पूरा एक दिन, अगेन 12 आवर्स। कंपनी का उठाया तो उसके पिछले 10 अटेम्प्ट के जितने पेपर है सबके आंसर आपको एक दिन में लिखना है। आंसर कैसे लिखना है ये मेरे नोट्स में मैंने आपको बताया है, मेरे वीडियोस भी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर भी आपको क्या करने हैं, पूरे सॉल्व करने हैं। अगर आपके पास मेरी किताब नहीं है, सिर्फ आंसर की किताब नहीं है, तो आप स्कैनर देख सकते हैं। नेक्स्ट 10 डेज जो एग्जाम के पहले वाले दिन होते हैं, अगेन कंसेप्ट किसके ऊपर होगा, नेक्स्ट 10 डेज भी आपको क्या करना है, रिकॉलिंग खेलना है। तो 5 टाइम्स आपकी रीडिंग प्लस रिकॉलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों ये एक कंसेप्ट है, ये तरीका है जो मैंने भी यूज किया था, जो सफान सर ने भी यूज किया था, और हम चाहते हैं कि आप सब भी यूज करें। निश्चित गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि ये कंसेप्ट अगर फॉलो किया तो आपको पास होने से, रैंक लाने से कोई रोक नहीं सकता। विश्वास कीजिए बच्चों बस, ठीक है। और मन में एक विश्वास रखिए कि आप सफल होंगे। अपने दिमाग को पॉजिटिव फूड्स देते रहिए। पॉजिटिव फूड मतलब अच्छे विचार सोचिए। कोई कंसेप्ट नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। रात को या फिर सुबह उठने के बाद जब अच्छा मूड हो तब आप उस कंसेप्ट को दोबारा देखिए और देखिए सफलता आपके कदम चुमेगी बच्चों। इज दैट क्लियर? आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था बच्चों। थैंक यू सो मच। और यस